Very good morning, students. I hope you all are great and doing good in your studies and revised your previous chapters. Today, we are going to do our chapter 9, which is coding with Python. So, in this chapter, we will be going to learn about a programming language which is Python and used for various developments and other used in other various applications. So, without wasting any further time, let's understand the chapter. The name of a chapter is Coding with Python, and the topics which we will discuss in this chapter are Python programming language, installing Python programming language, writing and running the program operators, operator precedence, sequential statements, interactive statements, and conditional statements. Now we have an amazing thought that make yourself your own competition, strive to better than yesterday, and you will find the true essence of life. Now we have an activity which says, do you know about computer language? Write some lines about any two computer languages. So, firstly, yes, we know about computer languages, and language which we are going to talk about is, because this is the chapter with Python, so let's write about Python. So, Python is a versatile, high level programming language. Then it is a popular choice of various applications, including web development and data analysis. तो जैसे हमने यहाँ पे पाइथन को डिस्क्राइब करा कि वो एक वर्सेटाइल हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑल्सो वो वेरियस हमारे जो एप्लीकेशंस हैं उनके साथ में इसका यूज किया जाता है, उनके लिए ये एक बहुत पॉपुलर चॉइस होती है बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड इजी रीडेबिलिटी एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स वेब डेवलपमेंट एंड डेटा एनालिसिस. सो लाइक दिस आप एक और कंप्यूटर लैंग्वेज को जस्टिफाई करोगे इन योर ओन वर्ड्स. वी आर मूविंग फॉरवर्ड. Here, Kavya says, hello Mayank, tell me something about Python. He says Python is a simple but powerful programming language which allows the user to write, run, and debug the code for the computer programs. Then she says, wow, good Mayank, you know very much about Python. I have also learned about Python in the previous class, but in this chapter there are some new topics about Python. Let us begin to explore more. पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. पाइथन एक बहुत सिंपल, इजी टू लर्न एंड पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. इट इज मच फास्टर टू राइट पाइथन प्रोग्राम्स देन अदर लैंग्वेजेस. ये अवेलेबल है टू रन ऑन वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे मैक, विंडोज, लिनक्स, यूनिक्स एटसेट्रा. ये क्या करती है, ये हमारे लिए बहुत ईजी बना देती है अक्रॉस प्लेटफॉर्म अ पोर्टेबल लैंग्वेज. पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मीन्स एक लैंग्वेज दैट इज क्लोजर टू ह्यूमंस देन कंप्यूटर. It is also known as a general purpose programming language due to its flexibility. Now, the name Python does not derive from the snake, but the British comedy television shows Monty Python's Flying Circus. Python has been used in lot of places जैसे creating games, statistical data and visualization, speech and face recognition. So, Python के features क्या क्या है? Python एक free to use and can be downloaded by anyone. ऐसी language है. It is developer friendly and high level programming language. Python एक case sensitive language है. It has a simple syntax. Python language ज़्यादा expressive है, मतलब that it is more understandable and readable. Being a high level language, Python code जो है वो quite है जैसे English language होती है. Python can run equally on different platforms जैसे Windows, Linux, Unix, Macintosh, etc. तो हम बोल सकते हैं कि Python एक portable language.
Python has a large library of predefined modules and functions for various tasks. Python can be extended with code written in other languages जैसे C और C++. Now we have some amazing facts that बहुत सारी big companies हैं जो Python का use करती हैं for their product services. Some of these are NASA, Nokia, Yahoo Maps, Facebook, Google, IBM, Walt Disney Feature Animation and YouTube. Now installing Python programming language. तो इंस्टॉल करने के लिए हमें उसकी वेबसाइट एड्रेस पे जाना है, डाउनलोड करना है लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन. इफ यू हैव अ मैक और Linux, you may have Python installed on your computer. Now, IDLE, which stands for Integrated Development and Learning Environment, ये tool होता है for Python programming. The Python installer for Windows contain करता है IDLE module को by default. तो जब भी आप start करते हो IDLE, it starts up in a shell, which is an interactive window where you can type Python code and see the output on the same window. राइटिंग एंड रनिंग द प्रोग्राम. तो आपको सबसे पहले आइडल को स्टार्ट करना है, ओपन करनी है एक न्यू विंडो एंड चूज करना है न्यू फाइल को अंडर फाइल मेन्यू. देन टाइप द फॉलोइंग प्रोग्राम. वी यूज इंट और फ्लोट अलोंग विद द इनपुट फंक्शन. जब भी हम इंट फंक्शन का यूज करते हैं, वैल्यूज आर कन्वर्टेड टू इंटीजर्स एंड आर एडेड. देन क्लिक ऑन रन मेन्यू. फिर आपको क्या करना है, चूज करना है रन मॉड्यूल या फिर आप F5 की का भी यूज कर सकते हो. आइडल आपसे पूछेगा टू सेव द फाइल and you should do so. Be sure to add .py extension to the file name as idle. Now this will tell idle to use colors to make your program easier to read. Now what are operators? Operator एक special symbol होता है जो indicate करता है certain process and this is carried out. Now it is used to perform mathematical calculations, logical conditions को check करने के लिए and making comparisons in programs. जो वैल्यूज होती हैं जिस पे ऑपरेटर वर्क करता है उनको हम ऑपरेंड बोलते हैं. जैसे प्लस एंड माइनस साइंस को हम फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन यूज करते हैं, तो ये हमारे ऑपरेटर्स हो गए. बट जिन दो नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो हमारे ऑपरेंड्स हो गए. नाउ सेवरल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स आर. बिफोर दैट ऑपरेटर्स देखते हैं. ऑपरेटर्स क्या हैं? दे आर ईदर रिप्रेजेंटेड बाय कीवर्ड्स और स्पेशल कैरेक्टर्स. फॉर एग्जांपल फॉर आइडेंटिफाइंग ऑपरेटर्स हम कीवर्ड का यूज करते हैं इज एंड इज नॉट. नाउ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ये होते हैं जिनको हम यूज करते हैं टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन के अंदर. वो बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब वो ऑपरेट करते हैं ऑन टू ऑपरेंड्स. अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू यूनरी एंड बाइनरी. There is a cool fact, unary operators जो होते हैं in Python, they are these operators. Signature of the declaration of unary operators include करते हैं operator, token and type of parameter. It does not require return type and the name of the parameter. तो यूनरी ऑपरेटर कौन से होते हैं? ये वो ऑपरेटर होते हैं जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं इन एन एक्सप्रेशन और अ स्टेटमेंट. जैसे x इक्वल्स टू प्लस 56. यहाँ पे हमने वैल्यू असाइन कर दी x को, वो है 56. y इक्वल्स टू माइनस 25. तो यहाँ पे हमने y को एक वैल्यू असाइन कर दी विच इज नेगेटिव 25, लाइक दिस. तो जब हम x प्रिंट कराएंगे तो वो 56 प्रिंट करेगा, y प्रिंट कराएंगे तो वो माइनस का 25 प्रिंट. बाइनरी ऑपरेटर यूज किया जाता है टू ऑपरेट ऑन टू ऑपरेंड्स. फॉर एग्जांपल x प्लस y. यहाँ पे प्लस क्या है? एक ऑपरेटर है एंड दैट वर्क्स ऑन x एंड y विच आर द ऑपरेंड्स. तो यहाँ पे कुछ ऑपरेटर है जैसे दिस इज फॉर एडिशन, ये ऐड करता है वैल्यू ईदर साइड ऑफ द ऑपरेटर, लाइक 20 प्लस 4 इज 24. ये सब्ट्रैक्ट करता है सिमिलरली, जैसे एडिशन होता है तो ये राइट हैंड साइड वाले ऑपरेंड को सब्ट्रैक्ट करता है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, लाइक 20 माइनस 4 इज 16. देन मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों ऑपरेंड्स को मल्टीप्लाई करता है. डिवीजन, दोनों ऑपरेंड्स को डिवाइड करता है. मॉड्यूलस, ये रिटर्न करता है रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग लेफ्ट ऑपरेंड विद द राइट ऑपरेंड, लाइक दिस. एक्सपोनेंट, ये परफॉर्म करता है एक्सपोनेंशियल पावर कैलकुलेशन ऑन ऑपरेशंस. देन फ्लो डिवीजन, ये जो डिवीजन है ऑफ ऑपरेंड्स, यहाँ पे जो रिजल्ट होता है वो क्वेश्चन होता है इन विच डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर रिमूव्ड. बट इफ वन ऑफ द ऑपरेंड्स इज नेगेटिव तो जो रिजल्ट है वो फ्लोड होगा, दैट इज राउंडेड अवे फ्रॉम 0. नाउ राइट द प्रोग्राम टू यूज बाइनरी ऑपरेटर. हमने यहाँ किया है x इज इक्वल्स टू इंटीजर, हमने फर्स्ट नंबर यूजर से इनपुट कराया, y सेकेंड नंबर इनपुट कराया और हमने प्रिंट कराया पहले सम, then difference, then product, then remainder, then flow division, cube of x and result of modulus. So this is how the output will look like.
और रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है जब भी हमें अपने वेरिएबल की वैल्यूज को क्या करना है, कंपेयर करना है। दे ईदर रिटर्न ट्रू और फॉल्स, या तो ये ट्रू में हमें रिजल्ट देंगे या फिर फॉल्स में देंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। जो ऑपरेटर्स हैं ये रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन द टू ऑपरेंड्स। So there is a cool fact that this operator works similar to this operator, but instead of returning float value, ये return करता है integer value. For example, this is 60. पाइथन के पास कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू। और जो ग्रेटर देन है ये बताता है, ये ट्रू देता है अगर लेफ्ट ऑपरेंड ग्रेटर है राइट ऑपरेंड से, जैसे 30 इज ग्रेटर देन 21, यस ट्रू। लेस देन बताता है कि जो लेफ्ट ऑपरेटर है वो लेस देन है राइट ऑपरेंड से, यस 30 इज लेस देन 21, फॉल्स। नाउ इक्वल टू बताता है कि दोनों ऑपरेटर्स के इक्वल है, फॉल्स, नो। नॉट इक्वल टू बताता है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ट्रू। ग्रेटर देन इक्वल टू बताता है कि या तो ग्रेटर है या तो इक्वल टू है, तो ग्रेटर तो है ही, तो ट्रू। और लेस देन इक्वल टू बताता है या तो लेस देन है या इक्वल टू है, और यहाँ पे दोनों ही कंडीशन फॉल्स है। हाँ, हमने रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करके एक प्रोग्राम बनाया है, एक्स ये वाई ये, और हमने चेक किया है कि एक्स क्या वाई से बड़ा है तो ट्रू, देन वाई क्या एक्स से बड़ा है, फॉल्स, देन क्या दोनों इक्वल है, फॉल्स, नॉट इक्वल है, ट्रू, ग्रेटर देन इक्वल टू ट्रू, एंड लेस देन इक्वल टू फॉल्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इज इक्वल्स टू असाइन वैल्यू अ वेरिएबल। तो ये असाइन करता है वैल्यूज ऑन इट्स राइट साइड टू द वेरिएबल रिटन ऑन द लेफ्ट ऑफ इट। एग्जांपल x इज इक्वल्स टू 19। तो यहाँ पे सिंपली असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज हो रहा है जहाँ पे जो वैल्यू है 19 वो असाइन करी जा रही है टू द वेरिएबल x। तो हमने क्या किया, x इज इक्वल्स टू 55, और अगर हम x प्रिंट कराएंगे तो वो 55 वैल्यू देगा। अगर हमने दे दिया y इक्वल्स टू x प्लस 15, तो इट विल बी 55 प्लस 15, एंड हम अगर y पुट कराएंगे अब यहाँ पे तो आंसर आएगा 70। लॉजिकल ऑपरेटर्स, इनको यूज किया जाता है डिसीजन बनाने के लिए ऑन टू कंडीशंस। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज होता है विद बूलियन वैल्यूज, एंड वो रिटर्न करते हैं बूलियन वैल्यूज एज आउटपुट। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड और नॉट। तो एंड का काम होता है कि जो ऑपरेशन है वो ट्रू होगा जब दोनों तरफ के ऑपरेंड्स क्या है, ट्रू है। दैट मीन्स x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो x इक्वल्स टू 10 तो फॉल्स है, बिकॉज x कितना दे रखा है उन्होंने 15, और y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20, दैट मीन्स 20 जो है वो इक्वल्स टू है 20 के, तो इट इज ट्रू। नॉट बोलता है कि जो ऑपरेशन है वो ट्रू होगा ओनली इफ द ऑपरेंड इज फॉल्स। तो नॉट x इज नॉट इक्वल टू 10, तो दैट मीन्स x तो 15 था, तो यस ये कंडीशन ट्रू हो गई। और बोलता है कि हमारे दोनों ऑपरेंड्स में से एक भी ट्रू होगा तो आंसर ट्रू आएगा। तो x इज लेस देन 10, नो, और y इज नॉट इक्वल्स टू 20, ये भी नो, बिकॉज y तो 20 है तो वो इक्वल्स टू है 20 के, तो यहाँ पे दोनों ही कंडीशन हमारी फॉल्स है। स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग जो है दे आर अमंग्स द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटर टाइप इन पाइथन। You may have to perform some operations on string values while working on it. तो पाइथन अलाउ करता है 2 kinds of operations to perform on string data types. यहाँ तो आप स्ट्रिंग्स को ज्वाइन कर सकते हो या रेप्लिकेट कर सकते हो स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम, और these two operations they are used on string. तो फॉर एग्जाम्पल प्लस जो साइन होता है ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर है, दैट मीन्स ये दो स्ट्रिंग्स को जोड़ने का काम करता है, एंड ये जो साइन है ये रेप्लिकेटर है। तो कंकैटिनेशन ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं, इसको यूज किया जाता है फॉर कंबाइनिंग टू स्ट्रिंग्स। जब प्लस ऑपरेटर को हम यूज करते हैं विद स्ट्रिंग, तो जो स्ट्रिंग है राइट साइड में ऑपरेटर के वो ऐड हो जाती है टू द स्ट्रिंग ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ किया एक एक्स स्ट्रिंग है पाइथन, वाई स्ट्रिंग है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो हमने प्रिंट करा दिया एक्स प्लस वाई, तो यहाँ क्या होगा पाइथन अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दोनों स्ट्रिंग्स जुड़ के एक सेंटेंस बना देंगे। एप्लीकेशन होता है जब हम क्या कर रहे होते हैं, रिपीट करा रहे होते हैं मल्टीपल कॉपीज ऑफ सेम स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल एंजॉय को हमने करा दिया 6, फिर प्रिंट द एंजॉय 6 टाइम्स, तो प्रिंट एंजॉय इनटू 5, तो एंजॉय 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 इस तरीके से आ जाएगा। व्हाट इज ऑपरेटर प्रेसिडेंस? ऑपरेटर प्रेसिडेंस डिटरमाइन करती है कि कौन सा ऑपरेटर इवैल्यूएट होगा सबसे पहले। तो जो प्रेसिडेंस है उसका यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग मोर देन वन ऑपरेटर, यानी कि कैसे एक्सप्रेशन है जिसमें एक से ज्यादा ऑपरेटर्स प्रेजेंट हैं, तो प्रेसिडेंस ये बताती है कि कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले ऑपरेट करेगा। टू अवॉइड एम्बिग्यूटी इन वैल्यूज, प्रेसिडेंस ऑपरेटर्स आर नेसेसरी, just like a normal multiplication method.
multiplication has a higher precedence than addition. So there are different levels of precedence from high to low, and एक operator है जो belong करता है एक higher level को, वो evaluate होता है सबसे पहले. Now there is a cool fact, BODMAS rule को use किया जाता है to evaluate an arithmetic expression, and BODMAS stands for brackets of divide, multiply, add and subtract. तो ये हमारा order है जिसमें सबसे पहले solve करते हैं हम parenthesis which is brackets, then exponents, then unary or positive or negative unary, then these multiplication, division, floor division, modulus, then binary addition, subtraction, then relational operators solve होते हैं, and then boolean और logical operators solve होते हैं. जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास इसका आंसर आएगा 24. तो चेंज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस हम यूज करेंगे पैरेंथेसिस, एंड नाउ आंसर इज 9. तो हमें जैसे यहाँ पे सॉल्व करना था ये एक्सप्रेशन, इसके लिए हमने क्या किया, 5 + 2 पैरेंथेसिस में 8 + 2 देन 8/2 एक्सपोनेंट 2. तो हमने सबसे पहले यहाँ पैरेंथेसिस सॉल्व किया, दैट ये पोर्शन सिमिलर रहा, पैरेंथेसिस सॉल्व करके यहाँ 10 आ गया एंड बाकी सब सिमिलर रहा. उसके बाद में हमने क्या किया, एक्सपोनेंट सॉल्व किया, तो इतना पोर्शन हमारा सिमिलर रहा, देन दिस इज ऑल्सो सिमिलर. यहाँ पे अब बस हमने क्या किया, इसको एक्सपोनेंट करके यहाँ पे 4 आ गया. नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हमारा 5 + 2 इज सिमिलर, देन हमने यहाँ पे ये सॉल्व किया, सो विच इज 2 - 4, देन 2 ये आएगा हमारा 5 + 4 - 4, देन 9 - 4 एंड 5 इज नाउ द रिजल्ट. सीक्वेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स होती है जो एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन प्रोसेस में हैपन होती हैं, विच द सीक्वेंस मैटर्स, एंड सो दीज काइंड्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड सीक्वेंशियल. तो दिस इज अ टाइप ऑफ एग्जीक्यूशन जहाँ पे एक स्टेटमेंट फॉलो करती है दूसरी स्टेटमेंट को विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ ब्रांचिंग ऑफ टू अनदर एक्शन. तो हम यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रहे हैं टू फाइंड द एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल whose radius is to be entered by the user. तो हमने यहाँ पे पहले क्या करा लिया, फ्लोट इनपुट कराया बाय द एज अ रेडियस बाय द यूजर, एरिया हमने मेंशन कर दिया, सर्कमफ्रेंस निकालने का फॉर्मूला मेंशन कर दिया, प्रिंट करना है एरिया ऑफ सर्कल, देन प्रिंट कराना है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, एंड दिस इज व्हाट द आउटपुट लुक्स लाइक. इंटरेटिव स्टेटमेंट्स कौन सी होती है, इंटरेटिव स्टेटमेंट या फिर लूप स्टेटमेंट होती है जो अलाउ करती है हमें कि हम एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर सके रिपीटेड टाइम्स जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती. तो लूप स्टेटमेंट्स का यूज किया जाता है जब भी हमें अपने कोड को बार बार रन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ईच टाइम विद अ डिफरेंट वैल्यू. तो पाइथन के अंदर इटरेटिव स्टेटमेंट्स 3 टाइप्स की होती हैं. सबसे पहले आता है व्हाइल लूप. व्हाइल लूप जो है पाइथन के अंदर हम इसको यूज करते हैं जब भी हमें एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है till the given condition is true, and when जब कंडीशन हमारी false हो जाती है तो control will come out of the loop and the condition is checked every time at the beginning of the loop. So यहाँ पे all the statements intended by the same number of character spaces after the programming construct are considered to be a part of single block of code. Python use करता है indentation as the method of grouping statement. जैसे while यहाँ पे condition then statement. और अगर हम एक प्रोग्राम लिखें टू प्रिंट योर नेम 5 टाइम्स यूजिंग व्हाइल लूप, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं मूर्ति. तो काउंट इक्वल्स टू 0, व्हाइल काउंट इज लेस देन 4, काउंट इक्वल्स टू +1, प्रिंट कराना है मुरली. तो मुरली 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 मुरली, दिस इज हाउ द आउटपुट विल लुक. फिर नेक्स्ट आता है फॉर लूप. फॉर लूप जो होता है पाइथन के अंदर, इसको हम यूज करते हैं टू इटरेट ओवर आइटम्स ऑफ एनी सीक्वेंस सच एज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. तो फॉर वैल्यू इन सीक्वेंस देन स्टेटमेंट्स, यहाँ पे हम एक रेंज फंक्शन का यूज कर रहे हैं. फॉर आई इन रेंज 1 to 7 प्रिंट आई. तो दिस इज व्हाट इट विल प्रिंट. नेस्टेड लूप क्या होता है पाइथन के अंदर, नेस्टेड फॉर लूप. यहाँ पे जब एक लूप को डिफाइन करते हैं हम इन अनदर लूप, उसको नेस्टेड लूप्स बोला जाता है. फॉर लूप जो लाई करता है इनसाइड, उसको बोला जाता है इनर लूप, एंड फॉर लूप जो बाहर होता है वो होता है आउटर लूप. And the outer loop will evaluate first and then the execution will move into the body of the nested, यानी कि top of the evaluated and processed loop. Through the process of the cycle, every time जो innermost loop है वो पहले execute होगा and then the outer loop. Write a program to print pattern using nested for loop. So for I in range 1 to 7, for j in range 0 to I, print I and equals to then print. So this is what it will print. यहाँ पे हमने j जो है इसको हमने i वाले लूप के अंदर ही इंसर्ट कर दिया. कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होती है पाइथन के अंदर वो डिफरेंट कॉम्पिटिशंस होती हैं या फिर एक्शंस होते हैं
तो डिपेंड करते हैं whether a specific boolean constraint evaluates to true or false. तो कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करते हैं कंडीशन एंड एग्जीक्यूटेड द स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली। ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये रिप्रेजेंट होते हैं इन मेनी फॉर्म्स। नाउ इफ स्टेटमेंट, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है पाइथन के अंदर, यूज टू डिटरमाइन वेदर अ ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूट। ये रन करता है बॉडी ऑफ कोड ओनली व्हेन इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। तो अगर आप चाहते हो टू जस्टिफाई वन कंडीशन while the other condition is not true, तब हमें इस स्टेटमेंट का यूज करना होता है और ये परफॉर्म करता है कोर्स ऑफ एक्शन इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू ट्रू, अदरवाइज ये स्किप कर देगा स्टेटमेंट को इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स टू फॉल्स। तो इफ एक्सप्रेशन स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू, तो अगर हम एक प्रोग्राम लिखे टू प्रिंट द एंटर नंबर इज ग्रेटर देन 20, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू इनपुट, हमने यूजर से इनपुट कराया और एक कंडीशन दे दी इफ x जो है वो ग्रेटर देन है 20 से, तो ये प्रिंट करेगा दिस नंबर इज ग्रेटर देन 20। तो हमने जब इसको रन कराया तो आया एंटर द नंबर, यूजर ने डाला 78, दिस नंबर इज ग्रेटर देन 20 प्रिंट होगा बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 20 और हमारी कंडीशन ट्रू होगी। नोट दैट इफ कंडीशन के बाद में देयर इज अ कॉलन एंड द कंडीशन बॉडी स्टार्ट्स विद एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैब स्पेस। इन द अबव एग्जांपल, अगर आप एंटर करते हो कोई नंबर ग्रेटर देन 20 तो प्रोग्राम देगा आपको आउटपुट x इज ग्रेटर देन 20। बट अगर आप कोई छोटा नंबर एंटर करोगे तो आउटपुट विल बी डिस्प्लेड बिकॉज देयर इज नो स्टेटमेंट गिवन। आउटपुट कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि हमने उस कंडीशन के लिए कुछ भी हमने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं दी दैट इज फॉलोड इफ द गिवन कंडीशन इज फॉल्स। नाउ इफ एल्स स्टेटमेंट जो है इसका यूज करते हैं हम जब भी हमें जज करना होता है एक स्टेटमेंट को ऑन द बेसिस ऑफ अदर। If one condition goes wrong, तो there would be another condition जो justify करती है स्टेटमेंट और लॉजिक को। तो इसका सिंटेक्स होता है if expression statement 1 else statement 2। तो हम एक प्रोग्राम लिख रहे हैं whether the number is greater than 20 or not। तो हमने सिंपली एक नंबर लिया यूजर से लास्ट प्रोग्राम की तरह, सेम कंडीशन रखी, प्रिंट करेगा नंबर इज ग्रेटर देन 20, बट एल्स में हमने दे दिया प्रिंट नंबर इज लेस देन 20। तो अब हमने यूजर से नंबर एंटर कराया, उसने एंटर किया 11, तो यहाँ आएगा नंबर इज लेस देन 20 क्योंकि हमने उसको एक एल्स कंडीशन दे दी टू प्रिंट। नाउ इन द गिवन एग्जांपल जब आप एंटर करोगे नंबर ग्रेटर देन 20 तो वो देगा पार्ट इज एग्जीक्यूटेड एंड ये शो करेगा आउटपुट दिस नंबर इज ग्रेटर देन 20, और अगर आप लेस करोगे तो वो शो करेगा दिस। नाउ इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, ये जो है इसको हम यूज करते हैं टू चेक मल्टीपल कंडीशंस एंड एग्जीक्यूट द कोड ब्लॉक विद इन इफ the conditions are evaluated to be true. So by using elif condition, you are telling the program to print out third condition या फिर possibility when the other condition goes wrong or incorrect. इसका syntax होता है if condition 1 statement 1, elif condition 2 statement 2, else statement. elif statement को यूज किया जाता है जब भी आपके पास कोई थर्ड possibility होती है as a outcome। आप यूज कर सकते हो मल्टीपल elif conditions को to check fourth, fifth, sixth possibility of your code। तो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं तो प्रिंट इफ एलिफ एल्स कंडीशन। नाउ एक्स में हमने यूजर से नंबर इनपुट कराया, इफ एलिफ स्टेटमेंट हमारी सेम रहेगी दैट नंबर इज ग्रेटर देन 20 इक्वल टू 20 हमने एलिफ में डाल दिया, एल्स द नंबर इज लेस देन 20, तो सिमिलरली हमें आउटपुट मिल जाएगा। नाउ इन द गिवन एग्जांपल इट इज क्लियर दैट वी ऐड मल्टीपल कंडीशंस टू अ प्रोग्राम यूजिंग कंडीशनल कंस्ट्रक्ट। लेट्स रिवाइज द चैप्टर। पाइथन एक बहुत सिंपल, इजी टू लर्न, पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। पाइथन के पास एक लार्ज लाइब्रेरी है ऑफ प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स एंड फंक्शंस। आइडल अलाउ करता है आपको टू टाइप इन योर प्रोग्राम्स एंड रन देम। वैल्यूज इन विच द ऑपरेटर वर्क्स उनको हम ऑपरेंड बोलते हैं। सीक्वेंशियल स्टेटमेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो एग्जीक्यूट करती हैं प्रोसेस को, दैट विल हैपन इन अ सीक्वेंशियल मैनर, so these kind of statements are called sequential statements। इटरेशन स्टेटमेंट या फिर लूप स्टेटमेंट जो होती है ये अलाउ करती है हमें टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एज लॉन्ग एज जो हमारी कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो जाती। वाइल कंडीशन स्टेटमेंट चेक करती है कंडीशन एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली। असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज किया जाता है टू असाइन वैल्यू टू अ वेरिएबल एंड इफ स्टेटमेंट एक कंडीशन स्टेटमेंट है इन पाइथन, हम यूज करते हैं टू डिटरमाइन द ब्लॉक ऑफ कोड विल बी एग्जीक्यूटेड। Let's do the exercise of the chapter. First is pick the correct option. Binary operator is used to operate on two operands. Which of the following operators are used to compare the values of variables? Relational. Flow division operator is same as division operator. So
Which operator is used to assign values to variables? Which of the following statements check the condition and execute the statements? Conditional, but iterative. Now, if statement is used for checking condition. Now, let's do fill in the blanks. Python has a large dash of predefined modules and functions for various tasks. Library. Python installer for Windows contains the dash module by default. Idle. Binary operator is used to operate on two operands. Dash operators are used to compare the values of variables. Dash are amongst the most popular operators types in Python. String. Dash loops are used to execute a block of statement till the given condition is true. Or now let's do true false. Values on which the operator works is called idle. False. Conditional statement check the condition and execute the statements accordingly. True. If statement is used to for making decision making. True. Equals to operator is used to assign the value to a variable. False. The else statement is used to check for multiple conditions and execute the code block. True. Operator for either represented by keyword or special character. True. So students, this was your chapter about Python. I hope the chapter is clear to you. Do revise your chapter once again. Learn your exercise and practice it. I will see you in your next video with next chapter. Till then, take care. Bye bye.